لگ رہا ہے بس آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، آپ اس حساب سے ٹیکس دیجیے، خرچہ آپ کا 1.5 لاکھ ہو رہا ہے، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کے مزاج کا، ان کے عہدہ کا، ان کے سچویشن کا بڑا خیال کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کون سے غریب پر؟ سے کہا گیا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے میں غریبوں کو دیا جائے گا، وہاں کے جس علاقے میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس منطقہ میں ہیں، آپ اس علاقے کے مالداروں سے پیسہ لیجیے اور غریبوں میں تقسیم کیجیے۔ اگر وہاں سے بڑھ جاتا ہے تو پھر دوسرے علاقے کا بھی، یا جس طریقے سے حالات اور عہدہ جس بات کی طرف آپ کو رہنمائی کرے اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی بہت ساری تفصیلات ہیں، تفصیلات میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے۔ تو اتنا کم سے کم اتنا جانیں کہ زکوٰۃ کس طرح فرض ہے۔ سونا اور شادی یہ آپ نصاب یاد رکھیں، اور ہم چونکہ کسان بھی بہت سارے لوگ ہیں تو غلہ پر بھی ہے۔ غلے کے لیے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَتُحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن اللہ کہتا ہے کہ فصلوں کی جو زکوٰۃ دینی ہے جس دن کٹائی ہوگی۔ اب اس میں کیسے دینا ہے اس کا بھی ایک میزان متعین ہے کہ 5 وسق اگر کسی کے پاس غلہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 5 وسق، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کا ہوتا ہے۔ 2.5 کلو مان کے چلیں تو تقریباً کتنا بنے گا؟ اس کا میتھمیٹک ہائی ہے۔ 5 وسق، 1 وسق میں 60 سا، تو 5 وسق میں کتنا سا بنے گا؟ 60 کو 5 سے ضرب دیجیے، 60 وسق، 5 وسق کو 6 سے ضرب دیجیے، 60 سے 300 بنے گا، 300 سا بنے گا، اور 300 سا میں 1 سا 2.5 کلو کا بنے گا، تو تقریباً 7.5 کنٹل بنے گا۔ کتنا بنے گا؟ 7.5 کنٹل۔ اگر آپ کی کھیت میں پیداوار ہے تو آپ اس میں سے کتنا دیں گے؟ اس کا 2 طریقہ۔ اگر آپ نے اس میں خرچہ کیا ہے، سینچائی کی ہے، بہت ساری محنت کی ہے، تو اس میں کتنا دینا ہے؟ 20واں حصہ دینا ہے۔ 20واں حصے کا مطلب کتنا ہوا؟ تقریباً 5% دینا ہے۔ اور اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وقتاً پانی کا بندوبست کرتے رہا، بارش ہوتی رہی، آپ کو خرچہ نہیں دینا پڑا، تو کتنا دینا ہے؟ 10واں حصہ دینا ہے۔ 10واں حصہ عشر ہے اور نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ یا 10واں حصہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، اور سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری چیزیں زکوٰۃ میں آتی ہیں۔ یہ موٹی بڑی چیزیں کہ جو دولت ہیں ان میں زکوٰۃ دینا ہے ہم کو، اور کھیت میں جو پیداوار ہے اس میں زکوٰۃ دینا ہے، اور جو بزنس ہم کر رہے ہیں بزنس کا بھی حساب لگائیں گے، اسے سونا چاندی کے حساب سے، اور اس میں بھی زکوٰۃ ویسے دینا ہے جیسے روپے پیسے کا اور پراپرٹی کا زکوٰۃ دینا ہے۔ تو تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اگر ہم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھیں تو یہ ضروری ہے؟ یہ نفلی اور سنت روزہ ہے، اس کا اجر آپ کو اللہ کا ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے 1 روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے کتنی دور کر دیتا ہے؟ 70 سال کی مسافت۔ 70 سال آپ جتنا چل سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، اتنی دور اللہ تعالیٰ 1 روزے کے بدلے میں کرے گا۔ اس میں قید نہیں لگایا کہ فرض روزہ، کوئی بھی روزہ ہو۔ تو روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، اور اللہ کتنا دے گا اللہ کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں۔ 5ویں چیز ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور یہ صاحب استطاعت کے لیے۔ استطاعت میں 2 چیزیں ہیں،
کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے یعنی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، حاجی صاحب کا اسٹیکر لگانے کے لیے نہیں، لوگوں میں سیٹ گنوانے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ میں نے سعودیہ میں 50-35 سال گزارا 10 حج کیا ہوں۔ اللہ کو ایک کوانٹیٹی مقصود نہیں ہے کہ آپ نے کتنا کیا ہے، اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی عبادتوں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے لے گا اخلاص کی بنیاد پر کہ آپ نے جو کام کیا ہے، عبادت کی ہے، کس لیے کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اس جگہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی خاطر لوگوں پر فرض ہے کیا کرنا؟ حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا، قصد کرنا۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو انسان طاقت رکھتا ہو، ایک تو مالی طاقت ہے، حلال مال، حرام مال سے کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دوسری شرط ہے جسمانی طاقت، کیونکہ وہاں پر آپ کو صرف بیٹھ کے اللہ نہیں کرنا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جوانوں کے جب پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لوگوں کا دماغ نہیں کام کرتا ہے، بڑے بڑے مائنڈ میں آ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہوں میں، عقل پریشان ہو جاتی ہے، جب 2-3 دن صحیح سے نیند نہیں ہو پاتی ہے، چلنا پڑتا ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں جوانی اور طاقت کی بھی شرط لگائیے کہ آپ کے پاس ہوش و حواس ہو، چلنے کی طاقت ہو، جسمانی طاقت اور مالی طاقت۔ اور عورت کے لیے ایک تیسری شرط ہے، کیا ہے وہ شرط؟ محرم کا ہونا۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں گروپ جا رہا ہے، اس میں 10-15 لیڈیز ہیں، میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں، میرے شوہر کو وقت نہیں ہے، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو اپنے بزنس سے بزی ہیں، ان کا یہ شرط ان کے پاس نہیں ہے، ان کے اوپر فرض نہیں ہے، اگر وہ کر رہی ہیں گنہگار ہوں گی۔ جو بغیر محرم کے سفر کر رہی ہیں ان کے اوپر یہ حرام ہے، اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر کرے۔ محرم کون ہے؟ بہنوئی محرم نہیں ہے، بہنوئی محرم نہیں ہے، پھوپھا محرم نہیں ہے، اور پڑوسی جو ہے وہ محرم نہیں ہے، خالو یہ محرم نہیں ہے۔ محرم وہ ہے جس سے ابدی طور پر شادی کرنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ اس میں کون رہتا ہے؟ بیٹا ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ سسر ہے نا، سسر بھی ہے، سسر سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، سسر بھی ہے۔ تو یہ چند لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ سفر کرے گی۔ گاؤں کا پڑوسی ہے، بازار سے سودا لیا کرتا ہے ہمیشہ، وہی جا رہا ہے، اس سے اچھا کون ملے گا، وہاں بھی خیال کرے گا، تو یہ سفر جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرطیں عورت کے لیے ہیں اور 2 شرط مرد کے لیے ہے۔ اگر یہ شرط نہیں ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں آئے گا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں پڑے گا اگر وہ بغیر حج کیے چلا گیا۔ لیکن اگر طاقت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہودی ہو کر مرے، مجوسی اور نصرانی ہو کر مرے، اسلام پہ رہ کر وہ نہیں مرے گا۔ یہ ایک طرح سے وحی سنائی گئی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو ارکان اسلام تھے۔ کون بتائے گا ارکان اسلام؟ بس پوائنٹ ہے، ارکان اسلام 5 بتائیں، بتائیے۔ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ معبود تو بہت سارے ہیں، آپ نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ دیکھیے آپ حکومت میں کتنے معبود گھوم رہے ہیں۔ سچا معبود، یہ شرط ضروری ہے، حقیقی معبود، سچا معبود کوئی نہیں ہے۔ جھوٹے معبود تو بھرے پڑے ہیں، جہاں دیکھو ہزار ملیں گے آپ کو۔ تو سچا کا ہونا شرط لگانا ضروری ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، جھوٹے معبود بہت ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ حج کے لیے مرد کے لیے 2 شرط بتائی گئی ہے صاحب استطاعت ہونے کے لیے۔ اس میں کیا 2 چیزیں ہیں، کون بتائے گا؟ طاقت ہونا اور جو ہے مال ہونا۔
हलाल माल का होना और बदनी और जिस्मानी ताकत का होना। ज़कात के लिए हमने जिक्र किया कि ज़कात का ये निसाब है। कौन बताएगा? सोने का कितना ग्राम है? 85 ग्राम। और सोन चांदी का आधा किलो से ज्यादा है। चांदी तो बहुत सस्ता है ना, 595 ग्राम। ज़कात देने के लिए मालदार होना जरूरी है ना। आज हम मालदार हो गए तो ज़कात कब देंगे? 1 साल के बाद। और दूसरी शर्त क्या उसमें? 1 साल गुजर गया, निसाब बाकी रहना चाहिए। अगर 1 दिन पहले 2 दिन पहले कम हो गया तो फिर ज़कात नहीं है। लेकिन इसमें हीराबाजी नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो मेरे पास इतना है, चलो इतना बेटे के नाम से कर देते हैं, इधर बीवी को दे देते हैं ताकि ज़कात ना देना पड़े। तो अल्लाह ताला दिल के हवाले से वाकिफ है कि आप किस मकसद से कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था कि 2-3 लोगों की बकरियां एक साथ होती थी कि उसमें बहुत सारे शरायत हैं। तो क्या कहते हैं, वसूलने वाला आता था ना, तो इधर थोड़ा सा ढकेल दिए, थोड़ा इधर ढकेल दिए कि देना ना पड़े। गिनेंगे तो कम है 40 से, और उससे गिने तो 80-90 है। या किसी का 121-120 होता था तो एक ढकेल दिया होता ताकि एक ही देना पड़े, क्योंकि 120 अगर है तो एक ही देना पड़ेगा, 121 होगा तो 2 देना पड़ेगा। तो एक उधर टका दे जाता दूसरा। तो ये हीराबाजी नहीं चलेगी कि आज चलो मेरे पास 95 है, 1 ग्राम तो बीवी को गिफ्ट कर देता हूँ, फिर बाद में ले लेंगे जब ज़कात का मसला निकल जाएगा। तो ये सब हीराबाजी और मक्कारी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। रमजान का रोजा रखना, कितने दिन रोजा रखना है रमजान का? 15 दिन या 20 दिन? आखिरी हिस्से में नहीं छुट्टी है, आखिरी हिस्से में छुट्टी नहीं होती है। रात की बात में दिन में खाएंगे तभी तो इबादत होगी। 29 या 30 दिन का रोजा रखना जरूरी है। आगे जो हमारा सबक है, ये जो बार बार लोग यादा कर रहे हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, बातें हमारे जहन में बैठ जाएं। अभी दूसरा हमारा है अरकानी ईमान। अरकानी इस्लाम ने पढ़ लिया। अरकानी ईमान कितने हैं? 6 हैं। ये दीन का दूसरा दर्जा है, दूसरा रुतबा है या दूसरा मर्तबा है। ईमान, इस्लाम हो गया, दूसरा क्या है? ईमान। ईमान के कितने रुकन हैं? 6 अरकान हैं। कौन बताएगा? आप एक बताएं। हाँ, अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान। हाँ, तो आप बताएं। अल्लाह के रसूल पर ईमान। कितने रसूल पर? सब रसूलों पर। अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान। हाँ, फरिश्तों पे ईमान। अल्लाह के कितने फरिश्तों पर? सारे फरिश्तों पर ईमान। आखिरत पर ईमान। कितना हो गया? 4 हुआ। और अल्लाह की तकदीर पर ईमान। अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। बाकी एक बचा, अल्लाह की किताबों पर ईमान। अल्लाह ने जिन किताबों को लोगों की हिदायत के लिए उतारी है उन किताबों पर ईमान रखना। लेकिन अभी कोई आए इंजील लेकर आ जाए कि बाइबल है, इस पर अमल कर लीजिए, अमल करना होगा उस पर? क्यों? इसलिए कि वो मुहर्रफ है, उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ गई है, वो अपनी असली हालत में बाकी नहीं है। और कुरान आने के बाद उन पर अमल करना हमारे लिए जरूरी नहीं बल्कि मना है, क्योंकि कुरान में सारी चीजें आ गई। लेकिन इंजील पर, ज़बूर पर, तौरेत पर ईमान जरूरी कि अल्लाह ने इन नामों से किताबें अपने नबियों पर उतारी हैं। तो जिन किताबों का नाम जिक्र किया गया है उनके नाम के साथ, और जिन किताबों का नाम नहीं है उन पर अल्लाह ने जैसा कहा है ईमान लाने के लिए, हम वैसा इजमाली तौर पर ईमान लाएंगे। तो ये 6 चीजें हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अरकानी ईमान। तो इसमें गड़बड़ मत कीजिए, अरकानी इस्लाम और अरकानी ईमान की। अरकानी ईमान में पहले नंबर पे क्या है? अल्लाह पर ईमान रखना। अरकानी ईमान। अरकानी ईमान कितने हैं? 6। अंग्रेजी में ताकि लोगों को आसानी हो। अरकानी
ईमान, ये 6 है ना। जी। किताब में लिखा हुआ पहला नंबर पर क्या है? अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान लाना, ये पहला है, अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर 4 चीजें हैं। अल्लाह पर ईमान लाने में किताब में लिखा हुआ 4 चीजें जी। क्या क्या पढ़े, उसको पढ़े कोई? अल्लाह अरकान ईमान के बजाय अल्लाह ताला का कौल है जैसे बिर्रा अन वल्लू, वो सब दलीलें हैं, उनका अरकान ईमान की दलील है वो नहीं ऊपर से पढ़ना है ना। किताब में तो ये बात नहीं, तो आप लिख लीजिए। अल्लाह पर ईमान लाने में 4 चीजें शामिल हैं। और कौन 4 चीजें कौन बताएगा? किसी को मालूम है? बताएं। सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना कि अल्लाह मौजूद है। अगर अल्लाह के वजूद पर भी हमारा ईमान ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे दारिया लोगों का अकीदा है कि अल्लाह कुछ नहीं है। मुल्हिदीन जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, पर दुनिया ऐसे ही बन गई है। तो अल्लाह के मौजूद होने पर ईमान रखना, ये अल्लाह पर ईमान लाने में शामिल है। अगर ये चीज नहीं है तो हमारा ईमान बिल्लाह मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना, और अल्लाह के वजूद पर बहुत सारी दलीलें हैं। एक तो फितरी दलीलें हैं और अक़ली दलीलें भी हैं और शरई दलीलें भी हैं। अल्लाह ताला मौजूद है। फितरी दलील क्या है? हर इंसान इस बात पर फितरी तौर पर ईमान रखता है कि मेरा कोई ना कोई खालिक है। बगैर खालिक के कोई इंसान दुनिया में नहीं आ सकता है। इसलिए जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम से पहले सूरह तूर की आयत जो है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, कि क्या लोगों अम खुलिकू मिन गैरि शै, लोग ऐसे ही पैदा कर दिए गए बगैर किसी चीज के, या वो खुद अपने आप को पैदा किए हैं? और दोनों चीजें ऐसी नहीं हो सकती हैं कि इंसान खुद ब खुद अपने आप को पैदा कर ले, या इंसान खुद ब खुद ऐसे ही कोई अचानक पैदा हो गया। ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनका एक मुनाजरा था लातीन आदमी से, मुल्हिद से, कि अल्लाह मौजूद नहीं है। और टाइम फिक्स हुआ कि फला वक्त में फला जगह पर मुनाजरा होगा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वक्त से लेट करके आए। अब वो लोग जैसे पहुंचे, वो कह रहे हैं कि आप तो हार गए, क्योंकि शर्त जो हमारी थी कि फला टाइम पे आना, आप आए नहीं। हाँ, मसला ये था कि हमको जहां से आना था, रास्ते में एक नदी पड़ती है और उसको पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अचानक मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ दरख्त से कटा हुआ, उसके बाद पटरा बना लकड़ी का, उसके बाद कश्ती बनी, कश्ती आई मेरे पास और फिर मैं उस पर सवार होकर आया। देर हो गया, इसलिए मैं लेट हो गया। पेड़ कटा, कश्ती बनी, मेरे सामने आई, बैठा, उसके बाद मैं मुझे यहाँ लाकर छोड़ी है। ये कैसे हो सकता है? खलास, ये जब हो नहीं सकता है, मामूली सी कश्ती नहीं बन सकती है बगैर बनाने वाले के, तो ये जमीन, ये आसमान, ये ये सितारे, ये दरिया, ये समंदर खुद ब खुद आ गए हैं। सारे लोग समझ गए कि ये अक्ल में आने वाली चीज नहीं है कि दुनिया बगैर किसी खालिक और मालिक को चलाने वाले के हो और नाराज है। तो ये अकली दलील है कि अल्लाह ताला मौजूद है। और फितरतन अल्लाह के नबी की जो हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर इंसान फितरत पर पैदा होता है। फितरत हमारी गवाही देती है कि अल्लाह मौजूद है। और कुरान और हदीस की दलीलें तो भरी पड़ी हैं कि अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला दुनिया को चला रहा है। तो अल्लाह के मौजूद होने पर ईमान रखना, ये ईमान बिल्लाह में दाखिल है। दूसरी चीज क्या है? वो सारी तफसील में याद है, बहुत लंबा हो जाएगा, तफसील में तो साथ साथ चलते रहे। दूसरे नंबर पर अल्लाह की रबूबियत पर ईमान लाना, अल्लाह की रुबूबियत
اللہ کے رب ہونے پر ایمان رکھنا. اب رب میں 3 پوائنٹ معلوم رکھیں کہ رب کون ہوتا ہے, کس کو ہم رب مانیں گے. آج دنیا میں ہر کوئی کہتا ہے کہ فلاں رب ہے فلاں رب ہے. تو رب کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے. رب خالق ہو, مالک ہو اور مدبر ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو عبادت کی دعوت دی ہے, پہلی آیت جو حکم دیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, یہ خالق کا صفت اللہ رب العالمین نے استعمال کیا کہ اللہ خالق ہے, اس رب کی عبادت کرو. رب کون ہے؟ جو خالق ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا, کوئی ایک مکھی ہی پیدا کر دو اگر تمہارے اندر اتنی پاور ہے, اگر رب کا اور معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو مکھی پوری جنات اور انسان مل کر بنا دو مکھی. اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے, مکھی اگر آپ کی پرساد میں سے جو چڑھاوا چڑھاتے ہو کھا لے, اس کو بھی تم واپس نہیں لا سکتے ہو. یہ اللہ نے چیلنج کیا ہے. تو رب کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے, خالق کی صفت ہونی چاہیے رب کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان ہے کہ اللہ رب ہے. اس کی دلیل ہے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور بہت ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں. تو رب کے لیے خالق کا ہونا, مالک ہونا, مالکی یوم الدین, وہ رب وہ اللہ جو روز جزا کا قیامت کے دن کا مالک ہے. اور اس کے بعد مدبر کیا ہے کہ دنیا کے اندر تصرف کرنے والا. تصرف کس کا چلتا ہے؟ کوئی ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے ہل سکتا ہے, کوئی ذرہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے نہیں. تو مدبر رب کے لیے مدبر کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے. یدبر الامر من السماء, اللہ تعالیٰ سارے امور کو آسمان سے چلا رہا ہے, اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے تدبیر کے خلاف نہیں چل سکتی ہے. جہاں جیسا جب چاہا اس حساب سے اپنے نظام سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں 4 چیزیں کون کون ہیں؟ 2 چیزیں ہو گئی. کیا ہے پہلی چیز؟ اللہ کے وجود پر ایمان لانا. پہلا تو لکھا ہی نہیں میں نے, اور دوسرا لکھ دیا, یہ پہلا یہاں لکھ دیتے ہیں اللہ کے وجود پر ایمان لانا. وہ جو میں نے مثال دیا تھا اس مثال کو یاد رکھیں. امام حنیفہ کا جو واقعہ ہے, بہت غیر مسلموں جو یہ لادین ہوتے ہیں, دہریہ ہوتے ہیں, ہٹا بٹا رہ جائیں گے. اور قرآن میں اور کتاب بہت سارے دلائل موجود ہیں. نمبر 3 کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت. اللہ کے الہ یا معبود, الہ اور معبود برحق ہونے پر ایمان لانا کہ اللہ ہی سچا معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اگر ہم یہاں کہ آمنت باللہ, اللہ پر ہم ایمان لائے, لیکن جا کے ہم قبروں پر اپنا سر دیکھ رہے ہیں, تو یہ چیز ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی معبود مان لیں. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, ہر وہ کام, ہر وہ بات, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو, جس میں اللہ کی رضا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. سجدہ عبادت کی نہیں عبادت ہے. تعظیماً کھڑے ہونا عبادت کی نہیں عبادت ہے. اور ہمارے یہاں آج کل لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں. سمندر میں کوئی گاڑی جا رہی ہے ندی کے اوپر سے پل پر, تو پیسہ پھینکنے لگتے ہیں کہ کہیں ندی غصے میں نہ آ جائے اور ہم کو بھی نقصان پہنچا دے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عبادت کے اندر ہے. تعظیم بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تعظیم کسی کے کھڑے ہونا, آلو کھڑے جاتے اس طرح سے, کوئی بابا آگے تو کھڑے ہو گئے, تعظیم ہلے کی نہیں ضرورت. چاہے مچھر کتنا بھی کھاتے, نماز میں تو خوب ہلیں گے, لیکن بابا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر ہلنا نہیں ہے. یہ تعظیم اور کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو اللہ کے الہ اور معبود ہونے پر ایمان لانا, یہ اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے. نمبر 4 کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات, اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان لانا. اللہ کے بہت سارے نام ہیں, بہت سارے صفات ہیں, ان پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے.
लिख लिया आपने इसको? अल्लाह पर ईमान लाने में कि जो अल्लाह के अस्मा और सिफात पर ईमान लाना है, इसके लिए भी 4 चीजें जरूरी हैं। अल्लाह ताला के नामों पर जो हम ईमान ला रहे हैं, इसके यहाँ भी 4 चीजों का ना होना जरूरी है। पहली चीज क्या है कि अल्लाह ताला के नामों में तहरीफ नहीं होना चाहिए। जैसे अल्लाह ने कहा कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाहत है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हाथ का माना क्या है? नेमत है, कुदरत है, ताकत है। ये क्या है? तहरीफ है अल्लाह ताला के नाम में। तो अगर हम अल्लाह के नामों पर ईमान ला रहे हैं तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह ताला के हाथ का माना क्या है? कुदरत और ताकत नहीं करना, बल्कि क्या करना है? अल्लाह के हाथ नहीं, इस तरह अल्लाह के शाया निशान है। और दूसरी चीज क्या है? तारीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज तातील। तातील के माने क्या होता है कि बिल्कुल इनकार कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना कि अल्लाह के हाथ ही नहीं है, अल्लाह के कान ही नहीं है, अल्लाह के नाक ही नहीं है, अल्लाह के पैर ही नहीं है। जबकि ये सारी चीजें साबित हैं। अल्लाह को हाथ है, अल्लाह को कान है, अल्लाह को पैर है, अल्लाह को आंख है, अल्लाह को कान, ये सारी चीजें हदीस में और कुरान में मौजूद है। तो इस पर भी ईमान करना। और तीसरी चीज क्या है? तशबीह और तमसील जिसको कहते हैं। अल्लाह के जो नाम है या अल्लाह के जो सिफात हैं उसको तशबीह ना दें कि अल्लाह का हाथ है तो अल्लाह का हाथ कैसा है? इंसान की तरह हाथ है। अल्लाह का हाथ है हाथी की तरह है, किसकी तरह है? तो ये तशबीह नहीं देना, तमसील, मिसाल नहीं देना कि अल्लाह का हाथ तीन भाई के हाथ की तरह है, क्योंकि इनका हाथ बड़ा है, मोटे ताजे, तो ऐसा होगा अल्लाह का हाथ। नहीं, अल्लाह ताला का हाथ जिस तरह अल्लाह के साया निशान है, अल्लाह के लायक की मुनासिब है, उस तरह से है। हमें उसमें अकल का घोड़ा जमाना कि अल्लाह का हाथ 2 मीटर का होगा, 100 मीटर का होगा, 1 किलोमीटर का होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तमसील नहीं बयान करना है, तशबीह नहीं देना है अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला के नामों और सिफातों पर ईमान लाने में दाखिल हैं कि अल्लाह ताला के नामों में तशबीह नहीं करनी चाहिए और ना ही कैफियत बतानी चाहिए। तकयीफ जो होता है कैफियत, कि अल्लाह ताला का हाथ ऐसा होगा, इस क्वालिटी का होगा, जुबान में अपने जुबान से बके या दिल में उसको माने कि अल्लाह ताला के हाथ की कैफियत बहुत पहाड़ के बराबर होगा, इस तरह से ऐसा मेरा दिल कह रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें अल्लाह के नामों और सिफातों पर ईमान लाने से खारिज करना होगा। नंबर 1 तहरीफ, कि अल्लाह ताला की कोई सिफत जिक्र किया जाए तो उसको क्या किया जाए? बदल दिया जाए, किसी और चीज का माना दे दिया जाए, उसके हकीकत पर उसको मामूल न किया जाए। नंबर 2 क्या है? तातील, यानी मुकम्मल तौर से उसको खत्म ही कर दिया जाए कि अल्लाह ताला के हाथ है, ना पैर है, ना कान है, ना आंख है, ये सब चीजों का इनकार कर दिया जाए। नंबर 3 तमसील, अल्लाह ताला की मिसाल बयान की जाए कि अल्लाह ताला को हाथ है तो फला की तरह है, अल्लाह को हाथ है, कान है तो फला की तरह है। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। और नंबर 4 तकीर कैफियत। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया था अल्लाह के सिफात के बारे में। इस्तिवा जो है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कुरान में कहा गया अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। तो कहा कि अल्लाह किस तरह मुस्तवी है अर्श पर? जिस तरह बादशाह अपने तख्त पर बैठता है उस तरह है। इमाम मालिक ने क्या कहा? अल इस्तिवाउ मालूम, इस्तिवा ये तो मालूम है कि अल्लाह ताला मुस्तवी है, ये चीज मालूम है कुरान और सुन्नत से। वल कैफु मजहूल, और कैफियत क्या है? मजहूल है, कैफियत ही मालूम है। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, कहा इस ताल्लुक से पूछना ही बिदअत है। यानी जो चीजें हमको नहीं बताई गई हैं उस ताल्लुक से हम अपना अगली घोड़ा दबाएं और मटकर पच्चू सवाल करें, ये ठीक नहीं है कि इंसान को राह रास्त से भटका देगी। तो इंसान को अल्लाह के नाम और सिफात के बारे में
जितना बताया गया है उतना मानना है, कुरान में और अल्लाह के नबी की हदीस में। अपनी तरफ से न कोई अल्लाह का नाम साबित करना है, न सिफत साबित करनी है, और ना ही उसको घटाना है। जितना बताया गया है उतना ही मान लेना है। तो ये अल्लाह पर ईमान लाने में 4 चीजें शामिल हैं। क्या क्या है? अरकान ईमान में पहला रुकन क्या है? ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाने में 4 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं वो? अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना कि अल्लाह मौजूद है। उसकी दलील अकली दलील भी है, फितरी दलील भी है, और कुरान और सुन्नत में भी बहुत सारी हदीसें और दलीलें मौजूद हैं। नंबर 2, अल्लाह की रुबूबियत पर ईमान लाना। ये अल्लाह रब है। रब मानने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। कि कोई कहे कि मैं रब हूं, तो रब के लिए ये 3 पॉइंट आप ढूंढिए उसके अंदर कि है कि नहीं है। इसके अंदर क्या क्या है वो? खालिक, मालिक और मुदब्बिर। तदबीर करने वाला, चलाने वाला, डील करने वाला, तसर्रुफ करने वाला, ये सारी चीजें उसमें आती है। नंबर 3 क्या है? अल्लाह के उलूहियत पर ईमान कि अल्लाह ही सच्चा माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। और चौथे नंबर क्या है? अल्लाह के अस्मा और सिफात पर ईमान लाना। और अस्मा और सिफात में 4 चीजों का इनकार करना जरूरी है। जैसे अल्लाह के पर ईमान लाने के लिए 4 चीजों का मानना जरूरी है, वैसे ही चौथे नंबर पर जो है अल्लाह के अस्मा और सिफात पर ईमान लाने के लिए 4 चीजों का उसको निगलेक्ट करना, उसको निकालना जरूरी है। क्या क्या 4 चीजें? तहरीफ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, तालीम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, तमसील नहीं होना चाहिए। नंबर 4, तकयीफ। तहरीफ में क्या कहा गया कि अल्लाह का जो नाम है, जो सिफत है, उसको दूसरा माना दे देना। जैसे मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, तो लोग हाथ को क्या कहते हैं? या अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर जब रात का तिहाई सा शुरू होता है तो अल्लाह आसमानी दुनिया पर उतर आता है। तो लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह उतरता नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत उतरती है। तो ये अल्लाह ताला का जो सिफते नुज़ूल है, सिफते उतरना है, इसका हम तहरीफ कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। जबकि जो चीजें हमको बताई गई है वैसे मानना है। कैसे उतरता है ये कैफियत हमको नहीं पता है। अल्लाह उतरता है, इस पर हमें ईमान लाना है। ये नहीं कहना कि अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह की नेमतें उतरती हैं, अल्लाह नहीं उतरता है। नहीं, अल्लाह उतरता है। ये हमारा ईमान होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने इस तरह हमको तालीम दी है। तो उसकी तहरीफ नहीं, तहरीफ के माने माना बदल देना, उसकी हकीकत को इनकार करना, दूसरी चीज को लाके डाल देना। नंबर 2, तातील, यानी मुकम्मल तौर से इनकार कर देना कि अल्लाह उतरता भी नहीं है, अल्लाह के हाथ भी नहीं है, अल्लाह के पैर नहीं, सब चीज का इनकार कर देना। नंबर 3 क्या है? मिसाल देना कि अल्लाह के हाथ किसकी तरह हैं? सगीर भाई के हाथ की तरह हैं। अल्लाह का हाथ फला मखलूक की तरह है। ये मिसाल भी नहीं देना है। और कैफियत भी उसकी नहीं बतानी है कि अल्लाह ताला का जो हाथ होगा कितना मोटा होगा, उसकी साइज कितनी होगी, वो कहाँ तक पहुँचता होगा। ये सब में हमें अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। बस अल्लाह की जो मकाम है, जो शान है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला की सिफात हैं, उसके सारे औसाफ हैं। तो ये चीजें हो गई अल्लाह पर ईमान लाना। नंबर 2, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना। अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाने में भी 4 चीजें शामिल हैं। अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान लाने में 4 चीजें शामिल हैं। कौन बताए? किसी को मालूम है? 2 बताए। और किसी को, आपके अलावा कोई और किसी को बताएं नहीं? देखिए, जालियात के दर्स में जो लोग जाते हैं ना, तो मशाइख से कहीं ना कहीं बातें कुछ आती रहती हैं, तो उसको ध्यान में रखा करें कि ये चीजें आपको हटके नहीं मिलेंगी। अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, उसके अंदर 4 चीजें शामिल हैं। पहली चीज क्या है? फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाना कि फरिश्ते मौजूद हैं। बहुत सारे लोग इनकार करते हैं फरिश्ते से कुछ नहीं, सिर्फ एक किस्से और कहानी है। इसलिए अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना
ऐसे ही फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाना जरूरी है। फरिश्ते कौन से मखलूक हैं? नूर से। किस नूर से? कौन से नूर से बनाए गए? अल्लाह के नूर से नहीं, नूर से बनाया गया। जैसे जिन्नात को आग से बनाया गया, इंसान को मिट्टी से बनाया गया, फरिश्तों को नूर से बनाया गया। अगर कोई अल्लाह तो अल्लाह की बेटियां होंगी, वो अल्लाह के बेटे हो गए, ये सब शुबहात आएंगे। तो उनको ये कहा है कि अल्लाह ने उनको नूर से पैदा किया। और इनकी तादाद कितनी है किसी को पता है? वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। अल्लाह के फरिश्ते जो इनके लश्कर है फरिश्तों की, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। तो अल्लाह ताला के फरिश्तों के वजूद पर ईमान रखना कि अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी हकीकत है। अल्लाह ताला ने उनको किससे पैदा किया है? नूर से पैदा किया है। और वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते नाफरमानी करते हैं? नहीं। और फरिश्ते का काम क्या है? सिर्फ इबादत करना। खाना पीना दुनियादारी ये सारी चीजें उनके यहाँ नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह ने उनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वो सिर्फ इबादत कर रहे हैं। इंसानों को भी अल्लाह ने इबादत ही के लिए पैदा किया, लेकिन इंसान दूसरी दुनिया में उलझ गया है। और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया था उस मकसद से ये बिल्कुल अक्सर व बेशतर लोग डगर से उतर गए हैं और दूसरे पटरी पे चल दिए हैं। और इनकी गाड़ी पता नहीं निकालना, इनको कब पटरी पे हिदायत देगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इनके वजूद पर ईमान लाना, ये फरिश्तों पर ईमान लाने में दाखिल है। नंबर 2, इसी तरीके से जिन फरिश्तों का नाम बताया गया है उन फरिश्तों के नाम के साथ ईमान लाना। कितने फरिश्तों का नाम जानते हैं लोग? कौन बताएगा? इनको फरिश्ते का नाम बताएं अब्दुल भाई। जी, जिब्रील अलैहिस्सलाम के फरिश्ते में, और एक एक आदमी बताएं। मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत और मुनकर नकीर और किरामन कातिबीन और हारूत मारूत मालिक। ये कौन है? जहन्नम के इंस्पेक्टर नहीं, उनको फरिश्ता एक ही फरिश्ते हैं, लेकिन उनका हम लोग दारोगा कहते हैं कि ये वहाँ के जिम्मेदार हैं। मालिक फरिश्ते ये वहाँ के जहन्नम के पूरा लीडिंग इनकी होती है। अल्लाह ने इनको जिम्मेदारी दी है। इन्हीं का नाम लेकर जहन्नमी इनसे दरखास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या मालिकुल यक़्ज़ि अलैना रब्बुक, कि हम लोग बहुत परेशान हो गए, मालिक अल्लाह से कुछ दरखास्त कर दो कि हमारा खात्मा हो जाए और दुनिया हम यहाँ से नापैद हो जाएं और हमारा काम खत्म हो जाए, जहन्नम से आज़ाद हो जाएं। उनकी दरखास्त को सुनने वाला है। तो जिन फरिश्तों का नाम कुरान और सुन्नत में जिक्र किया गया है उनके नामों के साथ ईमान रखना। कि जिब्रील एक फरिश्ते हैं, मिकाईल एक फरिश्ते हैं, इसराफील हैं, मलकुल मौत हैं, किरामन कातिबीन हैं, मुनकर नकीर हैं, मालिक हैं। और जन्नत के फरिश्ते का नाम क्या है? रिजवान। ये जितने फरिश्तों का नाम बताया गया है उन पर ईमान रखना। और तीसरी चीज, जिन फरिश्तों के सिफात बतलाए गए हैं, ये फरिश्ता इस तरह से है, उसकी ये सिफत है, उसकी ये पहचान है, उसके उन औसाफ के साथ ईमान रखना। जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बताया गया है? अल्लाह के जितने पैगंबर दुनिया में आए हैं सबके पास वही कौन आते थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो ये उनकी एक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी के साथ उनको ईमान रखना। उन्होंने अमानतदारी के साथ अल्लाह के पैगाम को रसूलों तक पहुंचाया। कोई कतर बेवत नहीं किया है कि जा अल्लाह रहे थे अली के पास, भूल गए मोहम्मद की बात होगी, जैसे होगा अकीदा है। तो ये चीज अगर हम ईमान रखेंगे इस तरह से तो फिर हमारा ईमान फरिश्तों पर डामाडोल हो जाएगा और सही ईमान नहीं रहेगा। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या जानते हैं? वो सारे फरिश्तों के सरदार हैं, सारे फरिश्तों के सरदार हैं। और क्या जानते हैं इनके बारे में? इनके 600 पर हैं। इनको अल्लाह ने 600 पर से नवाजा है। अगर एक पर फैला दें तो मशरिक और मगरिब में सूरज आपको दिखेगा ही नहीं, पूरा साया हो जाएगा।
इतने बड़े बड़े फैज़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको दिया है। ऐसे ही जिन फरिश्तों के नाम और सिफात हमने सुना, और काम, सिफत जैसे होती है जो लाजिमी चीज होती है, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर है, ये कभी हटेगा नहीं, ये उनके साथ लाजिम मलजूम है। तो सिफत जो उनके जात के साथ मुंसलिक हो, और अमल जो एक वक्ती तौर के लिए दिया जाए। तो अमल जिन फरिश्तों का जिक्र किया गया है उनके उस अमल के साथ ऊपर ईमान लाना। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम का अमल क्या था? वही रहा। और इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है? फूंके कि नहीं फूंके? कब फूंकेंगे? अल्लाह ताला का मुंह पे लेकर बिल्कुल बैठे भी हैं, जब अल्लाह का हुक्म हो ताकीर नहीं करूंगा, फौरन सूर फूंकूंगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से मीकाईल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है? बारिश के लिए जिम्मेदार हैं, और मालिक ये जहन्नम के जिम्मेदार हैं, और रिजवान जन्नत के रिजवान हैं, जिम्मेदार हैं। किरामन कातिबीन ये हमारे अच्छे बुरे आमाल को लिखने के जिम्मेदार हैं। कोई गड़बड़ी करेंगे, घूस काट लेंगे, जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल क़यामत के दिन दिखे दिया जाएगा और कहा जाएगा। इंसान क्या कहेगा? मा लिहादिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसको तो मैंने छुप कर किया था, कोई देखा नहीं था, कमरा बंद कर दिया था, ये कहाँ से आ गया है? ये फरिश्ते जो है इनसे जान नहीं छुड़ा सकते हैं। कितना भी दरवाजा 10 दरवाजे बंद कर लो, 10 कंबल के अंदर घुस जाओ, समंदर के तह में चले जाओ, ये आपके साथ रहेंगे। तो ये जिन फरिश्तों का नाम बताया गया उनके नाम के साथ, और जिन फरिश्तों का काम बताया गया है उनके काम के साथ उनके ऊपर ईमान लाना, ये फरिश्तों पर ईमान लाने में दाखिल है। तो ये इसी पर टाइम हमारा कितना हो गया? 1 घंटे ज्यादा हो गया है। अगर किसी का कोई सवाल हो, इतने जो चीजें हमने पढ़ी हैं, तो कोई सवाल कर सकते हैं 2-4 मिनट, और खाना हम लोग गया मेरे ख्याल से। इसके 4 मुकात के बारे में कैसे हिसाब कीजिए? किसका? तो फरिश्तों का वजूद होना, वजूद से पैदा किए गए, और वो अल्लाह की इबादत करते हैं। ये फरिश्तों की एक उमूमी तारीफ है कि फरिश्ते कौन हैं? अल्लाह के बुजुर्ग बंदे हैं, इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं, नूर से पैदा किए गए हैं, इनकी तादाद किसी को नहीं पता है। अब इन पर ईमान जो लाना है, ये 4 चीजें इसमें हैं। अल्लाह इनके वजूद पर ईमान लाना, जिन फरिश्तों का नाम बताया गया है उनके नाम के साथ उन पर ईमान लाना, जिन फरिश्तों की सिफत बताई गई है उनकी सिफत के साथ ईमान लाना, जिन फरिश्तों का काम बताया गया है उनके काम के साथ, अमल के हिसाब। हाँ, काम और अमल, अमल और काम दोनों की चीज है। तो काम और अमल जो उनका है, उनके काम और अमल के साथ ईमान है। कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम बारिश बरसाना है? नहीं, वही लाल उनका नाम वही लाना है। इसराफील का काम क्या है? सूर फूंकना है। मीकाईल का काम क्या है? बारिश बरसाना है। मलक का किरामन कातिबीन का क्या काम है? मुनकर नकीर का क्या काम है? कब्र में सवाल करेंगे। इसीलिए मालिक का क्या काम है? जन्नत। वही एंट्री नहीं मार सकता है बगैर सामने से गुजर कर। अल्लाह के नबी जब आए थे इस्लाम मिराज के मौके पर, तो ऐसा नहीं कि घुस जाए इसे जाके दरवाजा खटखटाना पड़ा, इजाजत लेनी पड़ी। कहा कौन है? कहा मोहम्मद हूँ। हाँ, बताया गया कि आप आने वाले हैं। इसका मतलब क्या? फरिश्ते गैब नहीं जानते हैं, फरिश्ते गैब नहीं जानते हैं। कहा कि आपके ताल्लुक पूछा कि आप कौन है भाई? कहा मैं मोहम्मद हूँ। कहा हाँ, आपके बारे में बताया गया, आपके लिए बोलने का हुक्म दिया गया है। इससे भी लिया कि जिससे हमारे घरों में इजाजत पड़ती है, आसमान में जाने के लिए इजाजत की जरूरत है। इसलिए कि कोई घुस जाएगा, फरिश्ते ये शैतान कोई जाना चाहे कि जाके वहां से कुछ चीजें चुरा के ले आऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मालिक जहन्नम के जिम्मेदार हैं, कोई वहां से भाग नहीं सकता है, और जन्नत के जिम्मेदार रिजवान हैं, कोई गैर उनके सामने से दाखिल नहीं हो सकता है, नहीं मार सकता है। ये 4 चीजें फरिश्तों पर ईमान लाने में शामिल हैं। उनके वजूद पर,
उनके नामों के साथ, उनके काम के साथ, उनके सिफात के साथ, और चार चीजें हैं, इसको ध्यान रखें। और कोई सवाल किसी का? शेख एक जो लोग का कहना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो अब नहीं, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर है, लेकिन अल्लाह की निगाहें, अल्लाह का देखना, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मशीयत सब ये है, इससे कोई निकल नहीं सकता है। अल्लाह ताला हर जगह नहीं है, अल्लाह ताला अर्श पर है। इसलिए एक लौंडी से अल्लाह के नबी ने पूछा कि इससे पूछो अल्लाह कहाँ है, कहा उसने आसमान की तरफ बोली रहेगा, आसमान में अल्लाह है। अल्लाह के नबी ने कहा कि हादी मुमिना, ये मोमिना है, इसको आजाद कर दे। और यहूदी के पास जब गए थे तो उसने भी उसी तरफ इशारा, और आप देखें जब इंसान कभी ज्यादा ठोकर लगता है, दुआ कहाँ से करता है? उठा के अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर ले, हाथ उठाता है आसमान की तरफ, अल्लाह ताला सुन ले। फितरत इसकी गवाही दे कि अल्लाह ऊपर है, लेकिन इंसान अपनी जहालत से अल्लाह को हर चीज मानता है, अल्लाह को हर चीज नहीं है।